علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں بڑی بیٹی تھی، حساس تھی، آنے والے حالات کی سنگینی کا اپنی پوشیدہ آنکھ سے نظارہ کر سکتی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ کچھ لوگوں میں ایسی خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قبل ازیں نوشتہ دیوار پڑھ لیتے ہیں۔ ابو بیمار رہنے لگے تھے اور میں جلد تعلیم مکمل کر کے ان کا سہارا بننا چاہتی تھی تاکہ برا وقت آنے سے قبل گھر کے حالات سنبھل جائیں۔ انہوں نے مجھے اعتماد دیا تھا، انہی کے کہنے پر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، ورنہ ہمارے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لیتی۔ یونیورسٹی ہمارے گھر سے کافی دور تھی۔ میری زندگی کے یہ سال بہت قیمتی تھے، ہر حال تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ 15 دن کی چھٹیاں ہو گئیں تو میں نے سوچا لائبریری سے کوئی کتاب ایشو کروا لوں تاکہ چھٹیوں میں پڑھ سکوں۔ لائبریری سے لوٹی تو اکثر بسیں جا چکی تھیں، بادل بنے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں برسات ہونے لگی۔ میں کافی دیر سے بس سٹاپ پر کھڑی تھی، بارش تیز ہوتی جاتی تھی، میرا گاؤن بھیگ گیا تھا۔ دیر تک جب کوئی بس نہ آئی تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے کوئی مصیبت زدہ مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اچانک ایک نوجوان کی نظر مجھ بھیگتی ہوئی بے بس لڑکی پر پڑی جو اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ میری طرف آیا اور کہنے لگا، محترمہ، بارش تیز ہونے والی ہے، موسلا دھار برسے گی اور پھر کوئی سواری نہیں ملے گی، آ جائیں میں آپ کو چھوڑ دوں۔ میں نے غور سے دیکھا، شکل جانی پہچانی لگی۔ یونیورسٹی کا طالب علم تھا مگر کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ مجھے سوچتے دیکھ کر بولا، اعجاز میرا نام ہے، آپ کے ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں ہوں، ڈریے مت، آ جائیں۔ ہمارا دور ایسا نہ تھا کہ لڑکیاں بلا خوف لفٹ لے لیتیں، مگر اب مجبوری تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ اپنے حلیے پر نظر ڈالی، بال بھیگے ہوئے اور گاؤن سے پانی بہہ رہا تھا، جوتے کیچڑ آلود تھے اور میں شرابور تھی۔ راستے میں اعجاز نے مجھ سے گفتگو کی، اس کی باتوں کا جواب میں ہوں ہاں سے دیتی رہی، کیونکہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر احسان مندی کے بوجھ تلے خود کو دبا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ تعلیم اور یونیورسٹی سے متعلق باتیں کرتا رہا، مگر میں تمام وقت ایسی چپ رہی جیسے سانپ سوکھ گیا ہو۔ گھر آ گیا تو جان میں جان آ گئی۔ گاڑی سے باہر پاؤں رکھا تو واقعی چھاجوں میں برس رہا تھا۔ میں اگر آج اس کی پیشکش قبول نہ کرتی تو اس سیلاب بلا میں بہہ جاتی۔ گھر کے سامنے اس نے مجھے اتارا، صدقے دل سے اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا، مگر جھوٹے منہ بھی اپنے گھر کے اندر آنے کو نہیں کہا۔ خوف زدہ تھی کہ مجھ کو اس کے ساتھ دیکھ کر گھر والے نہیں تو پڑوسی افسانہ تراش لیتے۔ اس دن کے بعد وہ اکثر اپنے شعبے کے ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں نظر آ جاتا، مجھے دیکھ کر دور سے سلام کرتا، میں سلام کا جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیتی۔ وہ نہایت جوشیلا اور زندہ دل نوجوان تھا، یونیورسٹی کے تمام فنکشنز میں حصہ لیتا تھا، بحث و مباحثہ کی تقریب ہوتی یا مشاعرہ یا ڈراموں کا سلسلہ، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ بہت جلد اس کا شمار نمایاں اور مشہور طالب علموں میں ہونے لگا۔ اب وہ ایک طرح سے اس علمی درسگاہ کا سرمایہ تھا جہاں ہم تعلیم پا رہے تھے۔ سبھی اس سے بات کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک دن مجھ کو بس سٹاپ پر کھڑے دیکھا تو میری طرف آ گیا، کہنے لگا، اس دن تو بارش کی مجبوری کے باعث میری پیشکش قبول کر لی تھی، آج دھوپ تیز ہے، اتنی دھوپ میں چلو گی تو رنگ سیاہ ہو جائے گا، آج دھوپ کی وجہ سے میری پیشکش قبول کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ میرے لیے کھول دیا۔ اتفاق یہ کہ اس روز باہر کسی ہنگامی صورتحال کے باعث بسیں بند ہو گئی تھیں اور میں اس امر سے لا علم تھی، سو آج بھی مجبوری تھی
मैं फिर भी अपनी जगह जमी हुई थी। अगर उस दिन तुमको सही सलामत घर पहुंचा दिया था तो आज भी पहुंचा दूंगा। अब मजीद वक्त जाया ना करो, बाहर अचानक गड़बड़ हो गई है। हंगामी सूरत हाल के तहत बसें नहीं चल रही। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन दिनों मोबाइल फोन थे नहीं कि पल पल की खबर हाथों में आ जाती। कुछ परेशान होकर उसकी जानिब देखा कि जैसे मेरी आंखें पूछ रही हों, सच कह रहे हो? बहुत गर्मी थी। मई का आखिरी हफ्ता था। वाकई धूप में इतनी तेजी थी कि तमाज़त से मेरा चेहरा जला जा रहा था। 2-4 लम्हे सोचने के बाद मेरे कदम मुझे उसकी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। पहली मुलाकात की तरह ये मुलाकात अजनबियत भरी नहीं थी। मुझे लगा हम में दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया है। ऐसी दोस्ती जो खालिस्तन खुलूस नियत पर मबनी थी। आखिरी पर्चे के रोज वो मुझे हाल से बाहर मिला। शिब्रा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे लगा जैसे उसने मेरे दिल का निशाना लेकर फायर कर दिया हो। तभी बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, हरगिज नहीं, क्योंकि शादी मेरी जिंदगी का मिशन नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का मिशन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, मैंने जवाब दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद मुझे मुलाजमत करनी है। अब्बू खासे बीमार थे। उनका कारोबार ठप हो चुका था। थोड़ी सी जमा पूंजी जो बैंक में थी उस पर हम लोगों का गुजारा था। मुस्तकबिल में मुझको अपने वालिद का हाथ बटाना था। मैंने ऐसे कोई ख्वाब नहीं देखे थे जो इस उम्र में लड़कियां देखती हैं। मेरे जवाब ने एजाज को उदास कर दिया, मगर नाउमीद नहीं हुआ। उसने सोचा अभी 1 साल बाकी है, दोनों तालीम मुकम्मल कर लेंगे, तब वो दोबारा मुझसे ये सवाल करेगा। दूसरा साल भी पलक झपकते गुजर गया और हमारी जान पहचान इखलाकी हुदूद में चलती रही। हमारा जहां आमना सामना हो जाता, रुक कर एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त कर लेते, चंद बातें कर लेते। हमारी जान पहचान इसी हद तक कायम थी। उन्हीं दिनों बहन ने ग्रेजुएशन कर लिया तो वालिद साहब ने एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी मंगनी कर दी। वो अपनी जिंदगी में एक बेटी के फर्ज से सुबुकदोश होना चाहते थे। मेरा भाई अभी 10वीं में था। अपने पांव पर खड़ा होने में उसे काफी वक्त दरकार था और हम कुल 3 बहनें थीं। लेकिन कुदरत ने कुछ और कर दिया। वालिद साहब जान की बाजी हार गए और फराइज जो उन्होंने अदा करने थे वो धरे रह गए। सालाना इम्तिहान सर पर था और अब्बू की वफात ने कमर तोड़ दी थी। उन दिनों मेरी हालत बुरी थी। गम और फिक्र ने मुझे खौफजदा कर दिया था। एतमाद इतना कमजोर हो गया कि किसी से बात करते हुए भी घबराने लगी थी। एजाज ने मेरी कैफियत को भांप लिया। वो रोज मुझे दिलासा देने लगा। उसकी बातों में जादू था कि मैं मायूसी और नाउमीदी के अंधेरे से निकल आई। अपने बिखरे हुए हालात को समेटा और पढ़ाई पर तवज्जो दी। यूं मास्टर कर लिया। जिस रोज आखिरी पर्चा था, एजाज मुझे दोबारा मिला। उसने वही सवाल दोहराया, अब तो तुमने इम्तिहान दे दिया है, मुझसे शादी के बारे में क्या इरादा है? मुझे आगाह कर दो ताकि अम्मी को तुम्हारे घर भेजूं। अभी नहीं भेजना। अब्बू की वफात को थोड़े दिन हुए हैं। अम्मी इस सदमे से नहीं निकली। जरा वक्त गुजरने दो, मैं खुद बता दूंगी। मैंने बहाना तराश लिया क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं देना चाहती थी। वजह मौजूद थी। मैंने बहन की शादी करना थी और छोटे भाई को पढ़ाना था। फिलहाल मैं उनकी खुशियों के लिए तगोदौ कर रही थी। अपनी खुशियों की तरफ सफर नहीं कर सकती थी और वक्त का कुछ अंदाजा ना था। ये एक लामुतनाही इंतजार था। अब मैं भी कभी कभी
एजाज से फ़ोन पर बात कर लेते। बस यहाँ तक हमारा राब्ता था। मैं नौकरी की तलाश में सरगर्दा हो गई। बिलाखिर एक पड़ोसी की सिफारिश से एक फर्म में नौकरी मिल गई। एजाज ने काफ़ी इंतज़ार किया। जब उसको अपने सवाल का कोई खातिर ख्वाह जवाब ना मिला तो वो तालीम के लिए बैरून मुल्क चला गया। वहां से भी उसने मुझसे राब्ता रखा। हर बार कहता कि मेरा सवाल भुलाना नहीं, तुम्हें मुझको कभी ना कभी हाँ में जवाब देना ही होगा। तब तक मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका हूँगा। मैं इधर दिन रात रिस्क की खातिर मेहनत और मुशक्कत में लगी थी। अब मैं ही घर की सरबराह थी। मेरी आमदनी पर कुनबे का इन्हिसार था। छोटी बहन, माँ, भाई सभी अपनी हर ज़रूरत के लिए मेरी तरफ देखने पर मजबूर थे। एक रोज़ डॉक्टर साहब ने बताया कि हस्पताल में एजाज नामी एक मरीज आया है। उसे कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। वो थोड़े दिनों का मेहमान है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये नाम सुनकर मुझे एजाज की याद आ गई। अगले रोज मैं किसी वजह से डॉक्टर साहब के पास हस्पताल गई तो वो उसी मरीज से मुतालिक नर्स को कुछ हिदायत दे रहे थे। मैंने पूछा कि वो कैसा है। चंद रोज का मेहमान है, जल्दी मुझसे बात कर लो, मैं उसे देखने जा रहा हूँ, इंजेक्शन लगाना है। ये कहकर वो चलते चलते बातें करते जाते थे और मैं उनके साथ साथ चलती जा रही थी। मरीज के रूम के सामने वो ठहर गए। बोले, रुकना चाहो तो मेरे ऑफिस में बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे जल्दी है, रेहान को स्कूल से लाना है। अचानक मेरी नजर कमरे के अंदर बेड पर लेटे मरीज पर पड़ी। नर्स उसी वक्त वहां से निकलकर बाहर आ रहे थे। हैरत ज़दा रह गई क्योंकि ये तो वही एजाज था जो कभी जोशीला, हंसमुख, जिंदगी से भरपूर हुआ करता था, जिसने मुझे मायूसी के अथाह अंधेरों से निकाला था। मैंने उसे बातें की। वो बहुत गमज़दा था। पूछा कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या किसी खुशनसीब को हाँ में जवाब दे दिया है? उसकी हालत देखकर मैं उसे जिंदगी का आखिरी दुख नहीं देना चाहती थी। तभी कहा कि मैंने कभी किसी को आज तक हाँ में जवाब नहीं दिया। मैं शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे माली हालात बहुत दिगरगूं थे। मुझको बेवा माँ, छोटी बहन और भाई की कफालत करना थी। ये जवाब सुनकर थोड़ी देर के लिए एजाज के लबों पर मुस्कुराहट आई। कहने लगा, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मगर अब जिंदा रहने के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दिलासा दिया कि उम्मीद मत छोड़ो, अल्लाह ने चाहा तो तुम ठीक हो जाओगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी जिसने मुझे जीने की उम्मीद दिलाई थी, आज मैं उसे जीने की उम्मीद दिला रही थी। ये सारी बातें मैंने डॉक्टर साहब के सामने की और मेरे जीवन साथी बहुत सब्र तहम्मुल और खामोशी से ये सब सुनते रहे। घर आकर मैंने हर बात से उनको आगाह कर दिया, लिहाजा उन्होंने भी अपने मरीज पर यह जाहिर न किया कि मैं ही उनकी बीवी हूं। उनको अपना ये मरीज अजीज था। उसकी दिल आजारी उन्हें मंजूर ना थी। उसका मर्ज आखिरी हदों को छू रहा था और वो जिंदगी की बाजी हार चुका था। जिस रोज उसकी वफात हुई, मैं फूट फूट कर रोई थी। बेशक वो मेरा महबूब ना था, मगर एक अच्छा दोस्त तो था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें।